ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। طلباء کے اندر چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے جموں کشمیر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے اولمپیاڈ کا انعقاد کیا۔ طلباء نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ پیش بانڈی پورہ سے محمد سعید کی رپورٹ۔ کانفرنس ہال بانڈی پورہ میں جموں کشمیر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی جانب سے ڈسٹرکٹ سائنس اینڈ کریٹیوٹی اولمپیاڈ کا فائنل راؤنڈ منعقد کیا گیا۔ طلباء کو سافٹ اسکلز سے واقف کرانے کے لیے بانڈی پورہ کے ایک نوجوان خواجہ عطرت کی سربراہی میں بنائی گئی اس تنظیم نے اولمپیاڈ کا پہلا راؤنڈ 2019 میں منعقد کیا تھا، جس میں کشمیر کے 900 طلباء نے شرکت کی۔ فائنل مقابلے میں کشمیر کے ابھرتے فنکاروں، نامور شخصیات اور ریڈیو جاکیز نے شرکت کر کے اپنی کامیابی کا سفر بیان کیا۔ اس کے علاوہ ابھرتے فنکاروں نے اپنے فن کا بھی مظاہرہ پیش کیا۔ صوفی سسٹرز نے دمادم مست قلندر گا کر ماحول کو خوب گرما دیا۔ جبکہ نرگس خاتون نے کلام حبا خاتون گا کر سامعین سے خوب داد حاصل کی۔ جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہے، ینگ جنریشن، ہمارے جو بڑے ہیں وہ کر گئے بہت اچھے کام، بہت ہمارے لیے بہت انسپریشنل سٹوریز چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن جو ایک چھوٹی ایج میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو ایک اچھی راہ پہ گامزن کرنا، ان کا جو فیلڈ ہے جس میں وہ آگے جا سکتے ہیں ان کو اچھے سے گائیڈ کرنا، سو یہ اس حوالے سے ایک ایونٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ اچھا انیشیٹو ہے اور یہ سب بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ کہ ہمارے جو بچے ہیں بانڈی پورہ سے یا کشمیر سے اکیڈمکس میں بہت اچھے رہتے ہیں، لیکن سافٹ اسکل کی جب بات آ جاتی ہے تو وہاں پہ تھوڑے بہت ہمارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اسی کے ریگارڈنگ یہ انیشیٹو ہم نے اسٹارٹ کیا۔ ہم نے پرمیشن لے کے سی او آفس وغیرہ ڈائریکٹریٹ سے اسکول کے ساتھ ٹائی اپ کیا اور بچوں کو سیشنز دیے کہ سافٹ سکلز کیا ہوتی ہے، ریزننگ کیا ہوتی ہے، کمیونیکیشن سکل کیسے امپروو کریں ہم۔ فائنل مقابلے کے دوران امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات و اسناد تقسیم کیے گئے۔ تقریب کے دوران ڈی ڈی سی بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس نے کہا کہ ضلع انتظامیہ اس طرح کے پروگراموں کے لیے ہمیشہ تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ نیوز 18 اردو کے لیے بانڈی پورہ سے محمد سمیع کی رپورٹ۔ فردوس کالونی عیدگاہ کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ گرڈ اسٹیشن لنک روڈ کی خستہ حالی کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مریضوں، بزرگ افراد اور بچوں کو خاص طور پر مشکلات کا سامنا ہے۔ موسم سرما میں لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے اس مسئلے کی جانب فوری توجہ دینے کی حکام سے اپیل کی ہے۔ گزارش سو گئی تہذ مہربانی اگر یت تھی داد دیو تھی وچتو یت کیا دلیل گمت ساری محل ول أسۍ ہٮ۪کان ییٚتہِ لانگ بوٗٹ چھِ اَسہِ لٲگۍ آسان ییٚلہِ اگر أسۍ صُبحس نیران چھِ بیٚیہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان وَتہِ پٔکِتھ تہِ نہٕ۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے وہ یہاں پہ آئے اور ہمیں اس پرابلم کا سلوشن ڈھونڈ کے نکالے اور یہ جلد سے جلد یہ پرابلم حل ہو جائے، تو بس یہی ریکویسٹ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے۔ ڈی سی آفس پلوامہ میں بھی حلف تقریب منعقد ہوئی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر نے نو منتخب ڈی ڈی سی ممبران کو حلف دلایا۔ 13 ممبران نے حلف لیا۔ پی ڈی پی کے وحید الرحمان پرہ NIA تحویل میں ہونے کی وجہ سے حلف نہیں لے سکے۔ ممبران نے کہا کہ وہ لوگوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی وعدے ہم نے کیے ان کے ساتھ وہ پورے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل ہے یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہمارے پلوامہ میں ہے، جیسے ورچوئل موڈ سے اور بھی جو موڈز ہیں اس طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے، بٹ ہی شوڈ بی میڈ پارٹ آف دا کاؤنسل ٹل جو قانونی پروسیس ہے وہ چلتی رہے گی، بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم سنس ہی ہیز بین elected by the people he has every right to be the member of this council۔ بارہمولہ میں ڈی سی جے نیتو نے 14 نو منتخب ڈی ڈی سی ممبران کو حلف دلایا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ اور ڈسٹرکٹ پنچایت افسر بھی موجود رہے۔ نو منتخب ممبران کو مبارکباد دی گئی۔ ان پر زور دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کریں۔ ضلع انتظامیہ نے انہیں ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے۔ ممبران نے بھی عوام کی توقعات پر پورا اترنے کا عزم دہرایا۔
क्या हैं, कितने पावर्स हैं, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कितने हैं, फाइनेंशियल पावर्स क्या हैं, उस हिसाब से जितना मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह ताला जो है हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनका एतबार जो है वो कायम रहे। कि जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स है, जो हमारे हुकूक है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जिस्ट करते थे 5 अगस्त से पहले 2019, उन राइट्स के लिए भी हम फाइट करेंगे। गांदरबल में डीसी शफकत इकबाल ने नौमुंतखब डीडीसी अरकान को हलफ दिलाया। मिनी सेक्रेटरीट में तकरीब मुनक्किद की गई थी। डीडीसी अरकान ने जम्मू कश्मीर के आइन के बजाय आइन हिंद के नाम पर हलफ लिया। हलफ लेने वालों में एनसी के साथ पीडीपी के 4 और 3 आज़ाद उम्मीदवार शामिल थे। अरकान ने कहा कि वोटरों से किए गए वादों को पूरा करेंगे और इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे। फैसला होगा हम उसी पे गौर फिक्र करेंगे। हम अलायंस के साथ हैं और लोगों के काम उसी तर्ज पे करेंगे हम, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर रही है वज़ीर आला महतरम महबूबा जी, वो एक लेडीज़ थी, उमर साहब रहे चीफ मिनिस्टर, जो उनकी डायरेक्शन होंगे हम उन्हीं पे काम करेंगे। ख़वातीन का यहाँ पे रिजर्वेशन, क्योंकि ख़वातीन को भी आप मौका मिलता है, उनकी जो समस्या हैं वो भी उन पे बात करेंगी। उनकी रिजर्वेशन के लिए हम गवर्नमेंट को ये अच्छा कदम है, मुबारकबाद देते हैं कि ख़वातीन को भी इस फील्ड में लाने के लिए उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। इंशाल्लाह लोगों के काम करना है, फील्ड में निकलना है, लोगों के साथ शानो बशाना चलना है। जो भी लोगों की उम्मीदें होंगे हम उनके साथ जुड़ेंगे उनके साथ। बांडीपुरा में 13 नौमुंतखब डीडीसी मेंबरान को कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी बांडीपुरा डॉक्टर उवैस ने हलफ दिलाया। उनमें 6 खवातीन भी शामिल हैं। कौमी तराने से तकरीब का आगाज और इख्तिताम किया गया। कामयाब उम्मीदवारों के अलावा 3 साबिक अरकान असम्बली उस्मान मजीद, मीर गुलाम रसूल नाज, निजामुद्दीन भट्ट और पुलिस और CRPF के अफसरान मौजूद थे। मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में नौमुंतखब डीडीसी मेंबरान की हलफबरदारी की तकरीब मुनक्किद हुई। डीसी एसपी कुलगाम, पंचायत और इलेक्शन महकमे के अफसरान मौजूद थे। मेंबरान ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों से मुतालबा किया कि उन्हें कमरों में कैद करने के बजाय लोगों की खिदमत करने का मौका दिया जाए। कुपवाड़ा जिले में नौमुंतखब डीडीसी अराकीन की हलफबरदारी के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग, SSP कुपवाड़ा के अलावा सियासी नुमाइंदों ने शिरकत की। 13 अराकीन ने आज हलफ लिया। दरगमुल्ला हल्के में वोटों की गिनती रोक दी गई थी। डीडीसी अराकीन ने कहा कि वो तामीर और तरक्की के कामों पर तवज्जो देंगे। दरगमुल्ला में काउंटिंग रोकने से मुतल्लिक डीसी ने कहा कि ये मामला इलेक्शन कमीशन के ज़ेर गौर है। रहन का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो फॉर्मेशन हुई है, ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ेगा। आप सब जानते हैं कि दुर्गमुला का जो इशू है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के कंसिडरेशन के अंडर है, और जैसे ही कमीशन की तरफ से कोई भी डिसीजन आता है उसके बाद हम आपको आगे कन्वे कर पाएंगे कि किस तरह से प्रोसीडिंग। अनंतनाग के टाउन हॉल में नौमुंतखब डीडीसी मेंबरान की हलफबरदारी के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम हुआ। तकरीब की सदारत डीसी अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा ने की। मेंबरान ने कौमी तराना भी पढ़ा। अनंतनाग के 14 ब्लॉकों में बेशतर डीडीसी मेंबरान नौजवान हैं। मेंबरान ने अवाम की फलाह बहबूद के खातिर काम करने का अज़म दोहराया। लोगों तक पहुंचूं और उनकी खिदमत करूं, जितने भी उनके मसलो मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम वो हल करेंगे। तो मैं सबसे पहले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे चुना और इस स्टेज तक पहुंचाया, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं और आगे भी इंशाल्लाह रहमान उन्हीं की खिदमत करता रहूंगा। कांग्रेस की यौम तासीस पर श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मुख्तसर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीबन 1 दर्जन कांग्रेस लीडरान जमा हुए और उन्होंने कौमी तराना गाया। कांग्रेस लीडर चुनी सिंह ने मरकजी हुकूमत पर किसानों की मांगों को बगैर किसी ताखीर के तस्लीम करने पर जोर दिया। बशीर अहमद मागरे ने तकरीब की सदारत की। ये तकरीब थोड़ी देर के लिए ही मुनक्किद की गई। आज के दिन कांग्रेस इस फाउंडेशन डे पे तमाम मुल्क जो मुल्क आज़ाद हुआ था, जिस कांग्रेस ने उसको आज़ादी दिलाई थी, उनको इस दिन पे अपने जितने भी मुल्क के लोग रहने वाले हैं उनको मुबारकबाद करते हैं और यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत भी इसी तरह फूले फले, तरक्की हो और आने वाला कल जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने की अपनी मांग को दोहराया है। NPP के सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह ने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने के वादे को याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत को अपना वादा पूरा करना होगा और असेंबली इलेक्शन मुनक्किद कराना चाहिए। पार्टी याद दिला रही है हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि मोदी जी, आपने कहा था बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर
स्टेट का दर्जा बहाल हो जाएगा। अब 5 अगस्त 2019 को ये हमारा दर्जा ख़त्म हुआ था, अब भी जारी है। ये कब होगा? मेरा एक प्रश्न ये है, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ, ये क्या हुआ? जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से मारूफ शायर अर्श सहबाई को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अर्श सहबाई की याद में मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया। इस दौरान अर्श सहबाई की अदबी खिदमात को याद किया गया। शाम तालिब ने अपने खिताब में कहा कि अर्श सहबाई की उर्दू अदब के मैदान में खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। भाई साहब जो पिछले ही दिनों हमसे जुदा हो गए, उन्होंने उर्दू ज़बान और अदब के लिए, ख़ासकर यहाँ के साहित्य के लिए बहुत बड़ा काम किया है और उनकी याद में हमने एक महफ़िल का इनेकाद किया। डोडा के गुरमुल इलाके में एक इको गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई है जबकि दीगर 5 जख्मी हुए हैं। तमाम का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। गाड़ी डोडा से गुरमुल जा रही थी। जख्मियों को GMC डोडा मुंतकिल किया गया है, जहां अब उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। जो डोडा मरमत के रहने वाले हैं, डोडा से गुरमुल की तरफ आ रहे थे। गुरमुल में एक दावत में जा रहे थे और गुरमुल के करीब पहुंचकर कूल में इनका हादसा एक्सीडेंट हुआ और मौका पर ही अब्दुल वाहिद जान बहक हो गए और इनकी बीवी और 3 बच्चे डोडा हॉस्पिटल में मुंतकिल किए गए हैं और ज़ेर इलाज हैं। मंडी तहसील में एक टाटा सूमो गाड़ी एक नाली में गिर गई। टाटा सूमो में सवार 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। फौज ने मकामी लोगों की मदद से मुतासरीन को मंडी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां से 4 अफराद को राजा सुखदेव अस्पताल रेफर किया गया। जख्मियों की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। करगिल जंग में बतौर रिपोर्टर खिदमात अंजाम देने वालों ने आज कठवा में एहतजाज किया। एहतजाजी रिपोर्टरों का कहना है कि हुकूमत ने उन्हें मुलाजमत फराहम करने का वादा किया था, लेकिन आज तक इस वादे को वफा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो वो एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। से अपील बार बार करूंगा कि इनको जल्द से जल्द कोई ना कोई रोज़गार दिया जाए ताकि ये अपना बीवी बच्चों का और अपना पालन पोषण कर सकें। हमने देश के लिए काम किया है, हम आज भी तैयार हैं। अगर कोई जंग होती है, चीन के साथ होती है, पाकिस्तान के साथ होती है, तो हम आज भी जाने के लिए तैयार हैं। सर, अगर ये हमारी डिमांडें पूरी नहीं करेंगे तो हम यहाँ से दिल्ली तक पैदल जाएंगे। हम वहाँ जाके प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारा कोई फैसला नहीं होगा। हम चाहे वहाँ मरे भी जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं हर गरीब के घर में दिया जलाएंगे हम, लेकिन ये गरीब जो देश की सेवा के लिए वॉलंटियर होकर गए थे, इन लोगों का कोई आज तक दिया नहीं जला है, भूखे मर रहे हैं। शोपियां में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने P&M विंग के साबिक इंजीनियर के हमरा ACHD ज़ेनपुरा का दौरा किया। उन्होंने इलाके में जारी तरक्याती कामों और नए इंपोर्टेड एप्पल क्लोनर रूट स्टॉक का जायजा लिया। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने फॉर्म मैनेजर ACHD ज़ेनपुरा के बेहतरीन काम का अंजाम देने पर उनकी सताइश की। फोकस रहेगा ज़ेनपुरा नर्सरी में जो नट फ्रूट्स हैं उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये अप्रूव ही हुआ है नट्स के लिए, आलमंड के लिए या जो दूसरे स्टोन फ्रूट्स हैं उनके लिए। तो इसमें हमें फोकस रहेगा नट्स पर। कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में प्लांट बनाने की और कुल्ला रूट स्टॉक बढ़ाने की, और ये भी हमारा प्रपोजल है कि हम प्राइवेट नर्सरीज़ को भी इसमें से कुछ स्टॉक दे के उनको भी इस मिशन के साथ शामिल करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।